حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اگر کوئی عقل لے کے آ جاتا ہے تو اسلام کو اوورٹیک کر سکتا ہے، لیکن نبی کی میموری پاور کے بارے میں علامہ زینی دہلان رقم تراز ہے، ان اللہ تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا. پورے ریگستان میں سے ایک ریت کا ذرہ لے، اس ایک ذرہ ریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمام ریگستان کے سامنے. آدم سے لے کر قیامت تک انبیاء، وکلا، فضلا، نقبا، بلغا، سائنٹسٹ، نیوٹن، آئنسٹائن، کیپلر، زرقانی، ارسطو، فیثاغوری، سقراط، بقراط، اے پی جے عبد الکلام، قیامت تک جتنے سائنٹسٹ ہوں گے سب کی عقل ایک ذرہ ریت کے برابر ہے، اور مصطفیٰ کی عقل تمام ریگستان سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا. نیکسٹ پوائنٹ، انسان اپنی میموری اور عقل کا استعمال کرتا ہے. زمین، کاجو، کشمش، پستہ، اخروٹ سب کچھ تو ہی دیتی ہے. یو آر اوور گاڈ، وی آر پریئنگ فار یو. انسان نے اس کی عبادت کی، لیکن عقل کو استعمال جب کیا تو کہا نہیں یار، مٹی سے زیادہ پاورفل تو اسٹون ہے. 100 گرام مٹی کا ڈھیلا لے، 50 گرام پتھر لے اور دونوں کو ٹکرائے، 50 گرام پتھر مٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں تحلیل کر دے گا. میموری اپ ڈیٹ ہوتی ہے اور کہنا ہے ریجیکٹ دا کلے، سلیکٹ دا اسٹون. مٹی کو چھوڑے اور پتھر کی عبادت کرے. ماؤنٹ ایوریسٹ اور جبرالٹر کی پوجا کی گئی. انسان نے میموری کا استعمال کیا اور یہ دیکھا دھمتری چھتیس گڑھ کے ایریا میں کرو چٹان کو لوہے کی مشین میں رکھ کے پیس دیا جاتا ہے. انسان نے کہا نہیں، پتھر زیادہ طاقتور نہیں، لوہا زیادہ طاقتور ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. لوہا کو 100% سے زیادہ ٹیمپریچر پر رکھ دے، حرارت پر، آگ پر، تو آگ لوہے کو جلا کر بھی پگھلا کر سیال مادہ بنا کر بہا دیتی ہے. لوگوں نے کہا لوہا زیادہ پاورفل نہیں ہے. ایھا النار انک معبود نحن نعبدک، او فائر یو آر اوور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو. لوگوں نے عبادت کی آگ کی. نعرہ نمرود جب آسمان سے باتیں کر رہے تھے، بارش کے چند قطرات نے اسے بجھا کر کافور کر دیا. عقل اپڈیٹ ہوتی ہے اور آگ کو ریجیکٹ کر کے واٹر کو سلیکٹ کرتی ہے. تو زیادہ طاقتور ہے، گنگا، یمنا، دجلہ، فرات، نیل، احمر، سمندر، وشی، یو آر اوور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو. انسان نے واٹر کی عبادت کی اور سطح آب بحر پر مئی جون میں دن کے 12 بجے سورج اپنی شعاع کو سمندر کی چھاتی پر بیٹھاتا ہے اور سورج کی شعاع کی حرارت سے واٹر بھاپ بن کے اوپر جانے لگتا ہے. لوگوں نے کہا نہیں یار یہ زیادہ پاورفل نہیں دکھتا، سورج زیادہ پاورفل ہے. او سن یو آر اوور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو. تو زیادہ طاقتور ہے. سائنٹسٹ نے سورج کے بارے میں لکھا 3,33,000 گنا زیادہ ویٹ ہے سورج کا دھرتی کی بنسبت. کتنا؟ 3,33,000 گنا زیادہ وزن ہے سورج کا دھرتی کی اکارڈنگ. 13 لاکھ. یہ جو زمین دیکھ رہے نا، 2 قسمیں اس کی، قارات، محیطات، جس کو بر اعظم اور بحر اعظم کہا جاتا ہے. بر اعظم بھی ساتھ ہے اور بحر اعظم بھی ساتھ ہے. یہ پوری زمین 13 لاکھ ایسی زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے. 13 لاکھ. آئنسٹائن اور نیوٹن جیسے لوگوں نے بھی سینٹر آف دا ورلڈ سورج کو مانا ہے. سورج سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے بڑا ہے. دکھنے والی گلیکسی کے اندر مٹیریل اسٹار، بگ اسٹار سورج ہے، سب سے بڑا. لیکن جب سب سائنٹسٹ بھی سورج کو سب سے بڑا مان رہے ہیں اور ادنا، اوسط، ممتاز، اعلیٰ سب کے سب کہہ رہے ہیں سورج سب سے بڑا ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. ایسے ماحول میں خلاق عالم نے 571 عبداللہ کی پیٹھ سے، آمینہ کے بطن سے ایک بچہ مکے کی دھرتی پر مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق
पैदा फरमाता और वही प्यारे मुस्तफा मकाम साहबा में अली की नमाज के लिए सूरत पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं और कहते हैं पलट। ये जवाब था ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, न्यूटन के लिए कि तू सबसे ज्यादा पावरफुल जिसको मानता है वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर का ये हाल है तो मालिक का क्या हाल होगा? So let's go say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam। बुनियादी तौर से दिए स्त्रियां हैं ABCD PQRSTUVWXYZ। पढ़ने वाले नर्सरी LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएशन BUMS MBB SMD IS IPS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत बनता है। अदर लाइन अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल गाल रा जा सीन शीन स्वाद वा को वा ऐन गैन फा कोफ काफ लाम मीम नून वाव हाल अमली बन गया। पढ़ने वाला नाजरा का हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रह गौस अब्दाल मातिम बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन? बुनियादी तौर से सुनो। इस वक्त सेंट पायर, सेंट जोसेफ, कॉन्वेंट, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, JNU, ANU साउंड का हमें दो बुझा जाए ना। सब के सब यूनिवर्सिटी ABCD वालों का ये कहना है कि पूरी दुनिया बनने से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, एक डॉट की शक्ल में। अचानक वो डॉट फटता है और सिलचर बन जाता है, कोलकाता बनता है, लंदन, डरबन, इटली, सिसिली बनता है। पूरी दुनिया बनने से पहले एक इकाई की शक्ल में थी, डॉट। डॉट समझते हैं ना? WWW के बाद जो बिंदी लगती है ना उसे डॉट कहते हैं। बा के नीचे जो एक नुक्ता होता है, ता के ऊपर जो दो नुक्ते होते हैं ना उसी को डॉट कहते हैं। हमारे उलमा समझ रहे हैं इसको अच्छे से, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में गए हैं या WW के बाद बिंदी को देखा होगा वो भी मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। साइंटिस्ट लगाना पूरी दुनिया एक डॉट में थी और उसने लिखा अपनी किताब में, in short the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time around 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intensity from a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक सिंगुलरिटी की शक्ल में थी, अचानक वो डॉट फटता है। जमीन, आसमान, स्काई, यूनिवर्स, मैन, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रन, प्लीज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्शन अल्लाह, इसका वजूद हो जाता है। क्या ये बात सही है कि दुनिया बनने से पहले, सिलचर बनने से पहले, आसमान और जमीन से पहले एक डॉट की शक्ल में थी? यजुर्वेद के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang theory? Replied, it is possible. Mahabharat replied, it is possible. ऋग्वेद, तमाम मिलल, महल, फरक, मदाहिब, मशारी, मकातिब, पोटअप स्कूल्स सबने कहा इट इज पॉसिबल। हो सकता है पूरी दुनिया एक डॉट से बनी। ABCD वाले ने बाज़ाब्ता इसको लंच किया मार्केट में कि पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। अब सीधा हम चलते हैं अलिफ बा ता सा वाले के पास। तेरी क्या राय है? तू क्या बोलता है? क्या दुनिया एक डॉट से बनी, एक सिंगुलरिटी से बनी? 1400 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर नबी के एक स्टूडेंट ने नबी से ले लिया। या रसूलल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड। अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। और या जाबिर, इन्ना अल्लाह तआला क़द खलक़ नूरा नबिय्यिका बिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिका अल-वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लक़ अल-ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका अन-नूर इला अर्बअति अज्ज़ा فخلق من الجزء الأول الله ومن الثاني القلم ومن الثالث العرش
ثم قسم الجزء الرابع الى اربعه اجزاء الى اخر. یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ پیارے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں جابر ابھی زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، ستارے نہیں ہے، کہکشاں نہیں ہے، بحر بر نہیں ہے، خشک و تر نہیں ہے، جن و انس نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے اور اسی نور سے پوری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے. A question arises in our mind, maybe in your mind also in this place. Newton, Einstein, Oxford, Cambridge का वाइस चांसलर, तू जिसे डॉट बोलता है उसकी हकीकत क्या है? उसकी हद रस्म और हद कुन क्या है? आया कहां से, रहता कहां था? हर सवाल के जवाब में साइंसदानों ने घुटने टेक दिए. हम इस्लाम से पूछते हैं बता वो डॉट की हकीकत क्या है, रहता क्या था? One day the prophet asked Jibreel, oh Jibreel, what is your age? तुम्हारी उम्र कितनी है? Replied, I don't know what is my age. जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है. हाँ, एक स्टार, एक तारा, should be noted this point, जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है. एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था. उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा. प्यारे मुस्तफा ने जिब्रील से कहा जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं. इसलिए मेरे भाई इस्लाम को कोई दुनिया के अंदर ओवरटेक नहीं कर सकता. बिजली हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है. इस्लाम एक हाईवे है और बहुत आसानी से मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है. इस्लाम एक हाईवे है और समझना उसको तो ये समझ ले कि यहां से सिलचर जाने के लिए रास्ते में जगह जगह सिग्नल भी मिलेंगे आपको. अब यहां से इतने किलोमीटर, अब इतने किलोमीटर, राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, एरो का निशान भी होगा. ये मादी हाईवे डामर सरिया सीमेंट गिट्टी पत्थर रेत का बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते हैं. तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है. एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू हग नहीं है. इस्लाम एबल टू किस नहीं है. ए अल्लाह तेरे इस्लाम जो इस्लामिक हाईवे है चलेंगे कैसे? या कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कह सकता कि आई है और इस्लाम इन माई पॉकेट, इन माई हार्ट, मेरे पास इस्लाम है, क्योंकि वो एबल टू टच नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम 12 लाख रूल्स 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा है. इस्लाम मानने का नाम है. इस्लाम नबी की लाई हुई बातों को तस्लीम करने का नाम है. मौला ये मादी हाईवे सिलचर एयरपोर्ट का बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते. तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है, हम चलेंगे कैसे? दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कबीर में नूर मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं. नूर मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह के पीठ में रखा 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह का सिग्नल बनके पैदा होते हैं. नूर मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा 533 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके ख्वाजा गरीब नवाज रबी अल्लाह तआला अन्हु पैदा होते हैं. ये इस्लामिक हाईवे के सिग्नल है. अब अगर कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो इसे औलिया अल्लाह का सहारा लेना पड़ेगा. जो औलिया अल्लाह का सहारा लेगा वो मंजिल मखसूस तक पहुंचेगा और जो औलिया अल्लाह अंबिया के बगैर रब तक पहुंचना चाहे तो वो हरगिज नहीं पहुंच सकता. और जो बख्ताजीम संतुष्ट रहता है खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर. जो वहां से हो यही आते हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं. औलिया अल्लाह क्या है? सिग्नल है. जिस तरीके से ये रास्ते में जाने वाला वो बोले कि मैं सिग्नल की बात नहीं मानता. अच्छा, एक और सवाल हो सकता है आप लोगों से
तो ये सिग्नल सब लोगों को नहीं दिखता, तुम्ही लोगों को दिखता है। अल्लाह के वली को सब लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। वो ये कहते कि ये अल्लाह के सिग्नल है, तो तुम्ही को दिखता सिग्नल, हमको तो नहीं दिखता सिग्नल। तो उसको कहिएगा ब्रो, एक्टिवा जब रास्ते में लाइट में चलती है तो सिग्नल उसी को नजर आता है जिससे एक्टिवा में लाइट लगी हुई होती है। सिग्नल को देखने के लिए हेलोजन चाहिए, ट्रक में लाइट चाहिए, टोयोटा फॉर्च्यूनर में लाइट चाहिए। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के सिग्नल है, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए, ईमान की रोशनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया कि अल्लाह के वली ये लाजिम है मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए। एबीसीडी जो लोग पढ़ते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जरूर पढ़े, लेकिन ये याद रखिएगा कि दीन का तहफ्फुज एसपी कलेक्टर नहीं करता है, वो हमारी ड्यूटी। इसलिए अपने घर के बच्चों को सबसे पहले अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम इंडिया में उर्दू में मोस्टली है, बंगाली में हो तो बंगाली, लेकिन उर्दू में मोस्टली है, इसलिए उसको जरूर जरूर हासिल करेंगे। और बुनियादी फर्क हमारे पास दसियों मिसालें हैं, लेकिन मैं वो देने के बजाय सिर्फ एक मिसाल दे दूं। एक मां जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या किया जाए? एमबीबीएस फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या राय है का ऑपरेशन? एमडी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट का ऑपरेशन? बीएमएस का एमडी सही बोल रहा, एसपी कलेक्टर आईएएस आईपीएस आईएफएस का एमडी की बात मान लो, तो वो जो कह रहा है वही करेंगे। गांव वालों ने क्या किया, अपने इमाम साहब से जाके पूछ लिया, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, क्या करें? डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करो, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा हराम हराम हराम, यह हराम है। गांव वाले कंफ्यूज्ड, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट इट? हराम कह रहे हैं आप, डॉक्टर लोग, हुकामा लोग, उस लाइन के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं ऑपरेशन, और आप कह रहे हैं हराम। यू हैव एनी सोल्यूशन? यू हैव एनी आइडियाज? यू हैव एनी मेडिसिन? यू हैव एनी पेनकिलर? आपके पास कोई इलाज है? इमाम साहब कहते हैं हाँ है ना मेरे पास इलाज। इमाम साहब का इलाज सुनो। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वाले बहुत अच्छे थे, इमाम साहब की बात मान गए, क्योंकि वो गांव वाले सिर्फ फज्र की नमाज में नहीं कहते थे इख्तदई तो रियादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबा शरीफा अल्लाहु अकबर, वो फज्र से लेकर जोहर तक इमाम की इख्तिदा में रहते थे, वो जोहर से लेकर असर तक पीछे इस इमाम ही के रहते थे, वो मगरिब और इशा 24 घंटा रात में सोते भी थे कि इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज में इख्तदई तो रियादल इमाम कर लिया और उसके बाद में इमाम साहब को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं थे, बहुत नेक और साले लोग थे, अपना लीडर और रहनुमा इमाम साहब को मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा। इमाम साहब की बात मान ली, 2 कब्र खोद ली, एक में मुर्दे को रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर